So the idea started with the preamble. Okay. So preamble में लिखा हुआ है we the people of India are solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. So we means simple one word है कि we means citizen are completely sovereign. Okay. Because we are not the parliamentary you can say legislative, executive, judiciary or the constitutional supremacy. क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझें, if we see the provisions of that no confidence, that you are removing a elected government on the no confidence of the people only. Okay. So तीसरा केस जो याद रखना है, that is the उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस है. हेयर द कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल बताया गया है राइट टू रिकॉल को और नो कॉन्फिडेंस को. दिस इज द वेरी फर्स्ट nuance that we need to understand. Okay. So when you see the second term, we the people of India sovereign. When we say we are sovereign, जब भी आप मार्केट में देखिएगा कि somebody do kind of operational sindoor, we are doing surgical strikes, we enter into the Galwan Valley, न्यूक्लियर पावर का जो डेवलपमेंट है, रोहिंग्या रिसेटलमेंट कर रहे हैं, इंडिया अपना पोजीशन रखता है इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में, यू कैन से यूक्रेन रसिया के कॉन्फ्लिक्ट में. when we are saying that we are following the doctrine, पहला doctrine है doctrine of parents patry. Doctrine of parents patry means state is parent. जब we are implying any extraterritorial law, means union under article 245 has the power to implement any extraterritorial law. So why we are allowed to do so? Because we are sovereign. प्रीलिम्स में बस याद रखना है सोवरन का मतलब होता है कि स्टेट इज इंडिपेंडेंट. मीन्स का नुआंस पॉइंट है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी. One type of sovereignty is an external sovereignty, that you are free for your globalization of your international relation, for your international security and your international ethics. So what ethics you will follow, what international relation you will follow, what kind of globalization means you follow, what you do for your internal security, you are free. That is the external sovereignty. And for the internal sovereignty, that you, for your federalism issue, how you handle that, this is one thing. Okay. So when we take center state relation, when we see the seventh schedule, in seventh schedule where we have the state list, union list, when we see special provisions for sixth schedule, seventh schedule, when we see article 371, when we see that special provisions for some state, when we see GST council, it means that government is doing something or other for the other states or the federal people. Why? Because we are internally sovereign to do that. So internal sovereignty is the key point here. Okay. There's a doctrine of parents patry, is that state is the guardian of those who need in help. So अगर आप कोर्ट जाते हैं, state is providing you help in the form of legal aid under article 39A. तो नालसा के तहत, if Kulbhushan need a lawyer, state provide him the lawyer. When state goes in another country in war and evacuate their people, okay, so Indian nationals को कहीं भी प्रोटेक्ट करना है, इंटरनल फ्रीडम ऑफ फंक्शंस जो वेरियस ऑर्गन्स है उसको करना है, तो दैट इज इंटरनल सोवर्निटी. ओके. तो बस भैया ये कीवर्ड याद रखिए. इंटरनल सोवर्निटी में कुछ सब भूल जाइए, बेसिक बेसिक चीज याद रहना चाहिए. आपको याद रहना चाहिए फेडरलिज्म के सारे इश्यूज. अगर स्टेट जो जो मैंने बताया वो किया, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्री याद होना चाहिए. इंडिया के कहीं भी लोगों को बचाए, दैट इट मींस दैट इंडिया इज ए सोवरन कंट्री. नाउ वी नीड टू think about other words. Other words is socialist. So when we hear the word socialist, इसका simple meaning समझना है हम लोग को, that there is a concept of state-led participation. ठीक है. When we see 5-year plans, planning commission, that is a Niti Aayog. So that is the socialist policy ka implementation. When we see nationalization, when we see LPG reforms, okay, when we see FDI, PLI, Manrega, Lakpati Didi, food security, housing, RT, Jan Dhan Yojana, ONDC, regulatory governance, CSR, they all are like participatory social state-led programs. Okay, so this you need to understand.
When we talk about secular, so we need to think like essential practices, doctrine. When we talk about triple talaq, Sabrimala conversions, management of temple shrines, government funding for major religious event. So they all are like the secular theme under which Indian government is working. Democratic, democratic when you see one nation one election का बात, when you see electoral bond का बात, when you see voter inclusivity का बात, right to information का बात, model code of conduct का बात, local self government का बात, these are democratic principles we are following. So रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, तो आर्टिकल 75 दैट प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस. गवर्नर का वीटो पावर का टाइमलाइंस का बात करें तो दैट इज टॉक अबाउट रिपब्लिक. तो बेसिक चीज है अबाउट सोशलिस्ट दैट द रिसोर्स and the natural resource they all own and managed by the government. This is the very simple principle of socialist. Okay, so there is an equal distribution and inclusionary principles that is involved in the socialist. Okay, so it is a good of everything plus bad of nothing. Okay, so welfare driven अगर state intervention है so that is a socialist intervention. So when you see DPSP, when you see the nationalization, when you see fundamental right of 1906, when you see land reforms, reservation, when you see equal pay for equal work, so inclusive growth में planning, uh, they all are working under the socialist principles. So when you see various welfare schemes that are working, they are under the socialist welfare mode only. Okay, but evolving nature है. पहले the state was the provider for that. Now after a certain time it becomes a regulator. Now it becomes a facilitator. Okay, okay. So with having all this, with have good health and education, you are you will create job for the people. So you can see the evolving nature that planning commissions and नीति आयोग में आ गए. License permit राज से you have come for the FDI, FPI. Through the nationalizations you come to the privatization. To the fundamental rights say we are implying the PSP as well. From the heavy industries to we come to social welfare schemes. So these are the things that goes change under the socialist framework of country. In citizen diplomacy, there are three things. Then we need equality, sometimes we need equity, and sometimes we need justice. क्या क्या अंतर है? बेसिक अंतर समझ लीजिए. इक्वालिटी जहाँ पे सबको ही सब चाहिए, जो बेसिक नीड है, जैसे स्कूल, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, ये सबको चाहिए. ठीक है, irrespective of the reason. Now there are certain things where we require equity. Equity means like individuals' needs are on the basis of giving support to give overall similar outcomes. Means if we need similar outcomes to everyone, but if some people is behind the bar, so you need to give them extra push. We are not saying that we will provide them the outcome better than you, because state is equally promising the outcomes to each and every citizen of India. So for the equity purpose, we just uplift them with an extra motive so that they come at par with others. Okay, this is one thing. But when you talk about justice, justice is that we need to remove the root cause of inequality. That means it is justice. So further, first thing is that their justice must be non-discriminatory. The non-discriminatory justice that will provide you the universal adult franchise. The justice will be proportionate. That if you provide the death penalty for a gang rape, it's a proportional justice we have provided. And if we say the distributive justice we have provided, like the LPG distribution to the or the affirmative action we have done. Okay, justice. Uh, okay, like social, economic, and political justice. So social justice is like affirmative actions that you are doing, reservations you are doing, STC atrocities. Economic justice, like you implement various DPSPs relating to the right to work. Okay, and political justice, it means when you provide legislative reservation for women, STSC, that are the political justice. Then the second thing is the liberty. Now the liberty has the positive meaning. It means the liberty is the when
The state provide you the atmosphere or the conducive atmosphere for your maximum growth of a person. That is the liberty. Now the negative one is that there is no external constraint on you. You're liberal. Okay, this is the second thing. So when you see any expansion under Article 19, Article 21, when you are protecting the interfaith marriages, it means you are taking the liberal stance. This is the first thing. Now we have the equality of status and equality of opportunity. Equality of status is nothing but the equality before law, and equality of opportunity, we are talking about equal protection of law. Okay, so when we talk equal pay for equal work, we work on equality framework. So now there is a last thing. There is a fraternity. Fraternity, it means is the individual dignity. It means you have a sense of belonging. Then national unity and integrity. That your actions are not threat to nation. Okay. So justice, liberty, equality, fraternity, and it maintains individual dignity and national unity and integrity. Individual dignity क्या हो गया? कि लाइक एंटी लिंचिंग प्रोविजन हो अंडर बीएनएस में, एलजीबीटीक्यू का राइट हो कि डिग्निटी उसके खराब ना हो, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब देयर इज ए you need to understand the enacting clause is uh, 26 नवंबर 1949. So right now, what is the status and purpose of preamble? So कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, तो एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, ठीक है। गोलकनाथ केस में सेम चलाया गया। जब केशवानंद भारती केस जो करंट स्टेटस है, अब क्या है? पहला स्टेटस है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको मान के चलना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दूसरा, बट इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, इट हैज जस्ट ए पावर ऑफ इंटरप्रिटेटिंग टूल। तो अगर आपको प्रियम्बल में भी अमेंड करना होगा, यू नीड स्पेशल मेजोरिटी टू, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। देयर आर मल्टीपल यूज केसेस यू कैन थिंक ऑफ। लाइक अगर ईडब्ल्यूएस का केस ले लो, देन यू आर प्रोवाइडिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फाइन, डन। Now, when you take right to privacy under Puttaswamy versus Union of India case, you are using the concept of liberty. You are maximizing the broadness of Article 21. This is the one thing. When we talk about Golaknath, Keswanand Bharti, when we are talking about property rights, so you are just saying that we are sovereign. Okay, we are talking about socialist principles that we work on using the Golaknath Keswanand Bharti. When we talk about ADR versus Union of India case, when we bend the electoral bond, we save the democratic principles. When we say Saira Bano versus Union of India case, we talk about justice, we talk about liberty, we talk about equality. When the Visakha versus State of Line, that we created the guidelines, you can say there is like the concept of individual dignity that we are thinking of. कहाँ कहाँ मदद किया? ओ, ये नहीं हो रहा था क्या? अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसको फिर से रिकॉर्ड कर दें। फर्स्ट थिंग इज दैट एक मेंस का इंट्रोडक्टरी पॉइंट में आपको याद रखिए कि जो प्रियम्बल है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आया था और सबसे बाद में ड्राफ्ट में ऐड हुआ था। तो प्रियम्बल इवोल्यूशन विटनेस किया इवन दो इट वाज बोर्न, ये चीज आपको याद रखिए। दूसरा कि इसका इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट को डिराइव करने के लिए बहुत सारे केसेस में यूज हुआ है। लाइक प्रॉपर्टी ओनर केस में क्या हुआ था कि ऑल प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी, आप बोलिएगा कि वो मटेरियल रिसोर्स है कम्युनिटी का अंडर आर्टिकल 39, तो ऐसा नहीं है। सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स नहीं है कम्युनिटी का, दैट इज कमिंग अंडर दी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, दिस काइंड ऑफ थिंग। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को मैंडेट देने के लिए, सबरीमला जजमेंट को देने के लिए, प्राइवेसी को देने के लिए, ठीक है। तो पालकी वाला जी बोले हैं कि इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मुंशी जी बोले हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है। ये सब याद रखना है। तो ओवरऑल है कि दो केस याद रखना है, बेरूबारी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, जिससे उसका इंटरप्रिटेशन पता चला। वेरियस केसेस जहाँ पे वो ये किया, एडीआर वाला केसेस, इलेक्टोरल बॉन्ड का, मस्त है, मजा आ गया। प्रियम्बल अब आएगा कोई भी। मुस्लिम्स के लिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको याद होना चाहिए कि जो प्रियम्बल है वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। एक बार अमेंड हुआ है जिसमें सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीन चीज ऐड हुआ है, ठीक है, याद रखना एकदम। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड हुआ है, ठीक है।
चार तो कोट याद रखना कि मीन्स उसको हॉरोस्कोप बोला है, नानी पालकी वाला आइडेंटिटी कार्ड बोला है, अम्बेडकर सोल बोला है। हम क्यों इधर उधर के एग्जांपल लें, हम जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसी में से एग्जांपल लेंगे। पहला चीज जो सोवरन, जो हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी में पढ़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर में पढ़े हैं, ये सब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिटी है, महासागर विजन है, ये सब आप सोवरन में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा रहेगा एग्जाम्पल। जहाँ भी सोशलिज्म का बात है लिखते जाते हैं। सो आप ये सोशलिस्ट वाले में देखिए कि ये जो कोऑपरेटिव पॉलिसी लाए हैं अपने लोग, सहकार से समृद्धि स्कीम लाए हैं, पंचायत एडवांसमेंट स्कीम लाए हैं, एलएसडीजी लाए हैं, ये सब है, डिजिटल सेंसस, प्रोपोर्शनल जस्टिस। सेकुलरिज्म में आप पुराना ये सब तो सब लिखेगा, आप लिखिए आनंद मैरिज एक्ट लिखिए, नुआंस पॉइंट मिलेगा ना आपको, अच्छा नंबर मिलेगा। आनंद मैरिज एक्ट लिखिए, सिख पिलग्रिम वीज़ा का बात कीजिए, मज़ा आ जाएगा कि रिलीजियस राइट को फोकस कर रहा है। एनसीवीसी जो है रिलीजन बेस्ड ओबीसी लिस्ट है, ठीक है। डिस्पाइट सोशल फ्रिक्शन जुडिशरी रिमेन द सेंटिनल ऑन कोई वे। डेमोक्रेटिक में तो सब लिखेगा ये सब, वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड आप लिखिए। सभा सारे आई कि भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कितना अच्छा कर दिया कि ग्राम सभा मीटिंग को ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये जो आपका क्या बोलिएगा डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, ये जरूरी है। तो अभी पाकिस्तान में 27th अमेंडमेंट हुआ है, जो उनका जो मिलिट्री है उसको सुप्रीम हो गया है। वो न्यूक्लियर सब कर सकता है, ठीक है। बट इंडिया में भी अभी भी सिविलियन सुप्रीमेसी है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल चेक है इंडिया में, कैग, एसीआई, आरजीआई का, ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है। कास्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए तो हमारे पास कुछ हो लिखने को, दैट वी वांट टू क्रिएट। सो अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो सत्यशोधक समाज, एंटी कास्ट मूवमेंट, इस पे क्वेश्चन आया है। सोशियो कास्ट सेंसस पे आया है। बट लाइक मेंस पे आप देखिए, जीएस 1 में सोसाइटी में आ रहा है कि क्या कास्ट सिस्टम आज भी सोशल लाइफ को डोमिनेट कर रहा है, ये जानने वाला बात है। दूसरा, उससे पहले भी आया है कि कास्ट सिस्टम क्या अपना रिलेवेंस खो दिया है मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, ये है। नया आइडेंटिटी या नया फॉर्म्स लिया है, ये जानने वाली बात है, ठीक है ना। या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी समझना होगा कि कैसे वो ओबीसी स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना, तो क्या चेंजिंग हो रहा है कास्ट के रोल का, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब आपको नया ये नहीं लेना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, ओके। तो जब हम लोग कास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली एनालाइज द आर्टिकल 14। और ये जो आर्टिकल 14 याद होगा, दिस ओनली वी विल टेक विथ अस इन द मेंस एग्जामिनेशन। सारा आंसर इसी से लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। The very first thing that we need to understand the prelims nuances, first of all, we need to clarify that. The first is the equality before law and the equal protection of law. पूछ रहा है कि equality before law is the positive concept borrowed from American Constitution. नहीं, equality before law negative concept है। Negative concept क्यों? क्योंकि it's an absence of privileges from the British tradition. Equal protection of law is a positive concept from the USA. ठीक है। आर्टिकल 385 क्या है? रिजर्वेशन फॉर एसटीएस इन पब्लिक एंड एब्सोल्यूट राइट अंडर आर्टिकल 16? नो। तो आर्टिकल 335 mandates that the claims of ST/SC shall be taken into consideration with consistent maintenance of efficiency of administration. तो efficiency of administration जरूरी है। So what is article 103? 103 is EWS reservation is only applicable to government run educational institution. ऐसे नहीं है। 15(6) it also applies to private unaided institution also, ठीक है। EWS reservation. Then we have the creamy layer. Creamy layer principle only applies to OBC, while Indira Sahani limited it to OBC. जर्नैल सिंह जो केस हुआ था वो एक्सटेंड किया है क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल टू एसटीएससी प्रमोशंस में। एसटीएससी में अभी भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 17-18, आर्टिकल 17 अबाउट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबाउट टाइटल्स। तो आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 18 आपको मिलिट्री और एकेडमिक एक्सेप्शंस देता है, ठीक है, यही है। क्वेश्चन के बेसिस में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आया मेंस में कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इक्वालिटी वो ट्रांजिशन कर गया है फॉर्मल इक्वालिटी से टू सब्सटेंटिव इक्वालिटी। आप लैंडमार्क जजमेंट से बताइए, ठीक है भैया। हम लोग नुआंस स्टार्ट कर दिए हैं फॉर आर्टिकल 14। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 to 18 देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी का वो फ्रेम में आता है, ठीक है। तो हम लोग को समझने वाला बात है, सबसे पहले सिर्फ आर्टिकल 14 को समझ लेते हैं शांति से।
that what Article 14 is trying to convey. So पहला Article 14 है that it is available to everyone, means foreigners, Indians, सबके लिए है. तो इंडियंस के लिए सिर्फ 15, 16, 19, 21, 19 और 25 और शायद और 29, 30 है शायद. हाँ 29, 30 है, 25 भी नहीं है. तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आपका जो 5 राइट है ये बस इंडियंस के लिए है, बाकी सब सबके लिए है. ठीक है. तो आप स्टेट के अगेंस्ट लगा सकते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है. ठीक है. तो देयर इज एन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द कोर्ट ऑफ लॉ एंड देयर इज एन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो एग्जाम्पशन क्या है? आर्टिकल 31C एग्जाम्पशन है. अगर आपको 39C 39D इम्प्लीमेंट करना है तो यू हैव द एग्जाम्पशन अंडर आर्टिकल 14. अगर आपको एमपी एमएलए का इम्यूनिटी है जो कि 105 194 के तहत मिला है तो वो भी आपका ये है. देयर इज एन आर्टिकल 359. आर्टिकल 359 जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस है उसके लिए भी है. आर्टिकल 361 जो है, जो आर्टिकल 361 क्या है? जो प्रेसिडेंशियल और गवर्नर इम्यूनिटी का बात करता है. क्या है प्रेसिडेंशियल गवर्नर इम्यूनिटी? दो ही है. इसको एकदम याद हो जाना चाहिए भाई सब, कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना ऑफिशियल पोस्ट में किए हुए हर कार्य के लिए दे आर लाइक ऑफिशियल कैपेसिटी में दे डू नॉट हैव एनी लिएबिलिटी. ठीक है. दूसरा, फॉर देयर पर्सनल एक्शंस, तो क्रिमिनल केस हो सकता नहीं होगा जब तक वो ऑफिस में है, और सिविल केस के लिए 2 महीना पहले आपको उसको नोटिस देना होगा. ठीक है. ठीक है. तो कोई बोलेगा बंदा भैया आर्टिकल 14 बता दीजिए. तो आर्टिकल 14 इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ, इज टॉकिंग अबाउट दैट. इसका बेर आर्टिकल 14 का टेक्स्ट क्या है? द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट. ये याद होना चाहिए. द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द टर्म. टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में डिफाइंड है ऑलरेडी, और ये सबके लिए है, स्टेट के अगेंस्ट है, और सेल्फ एग्जीक्यूटरी है. ये जानने वाला बात है. एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन में आपको जानना है सबसे पहले इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस 359(1) के तहत, 361 में गवर्नर और इसका इम्यूनिटी प्रेसिडेंट का, और 105 194 के तहत आपका एमपी एमएलए का प्रिविलेजेस, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इफ यू से लाइक आर्टिकल 361A. when we do article 31C, when we try to implement 39C or 39D, so laws implementing that under article 31C is the clause here. Okay. तो कभी भी क्वेश्चन आए बेटा इंट्रोडक्शन में, क्या याद हो जाना चाहिए कि विद द वर्ल्ड मोस्ट comprehensive affirmative action policy and one of the largest welfare expenditure, India understand the equality like none other. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है. रूटेड इन द एंटी आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन ऑफ आर्टिकल 14. ठीक है. रूट है इसमें. कहाँ रूट है? एंटी आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन ऑफ आर्टिकल 14. इंडिया अप्रोच टू इक्वालिटी act as a sentinel for human dignity, bridging the gap between the letter of law and the spirit of justice. एकदम याद हो जाना चाहिए, ये लाइन एकदम याद हो जाना चाहिए. पहला क्या, कभी भी आर्टिकल 14 में क्वेश्चन आए तो 15 पॉइंट तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए. पहला पॉइंट क्या है? आर्टिकल 14 का टेस्ट क्या है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रीजनल नेक्सस. तो पहला ही चेक करेंगे कि भाई जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव ये दोनों चीज से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर पास हो गया तो ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है फ्रॉम फॉर्मल टू सब्सटेंटियल इक्वालिटी. सब्सटेंटिव इक्वालिटी में फॉर ये हुआ है. तो आप बोलिएगा कि जो इक्वालिटी, जैसे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अगर वो नेगेटिव राइट है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का है, अगर पॉजिटिव है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है. तो स्टेट इज रीचिंग आउट टू मार्जिनलाइज्ड, ये कीवर्ड है, इसको लिखना है. ठीक है. दूसरा चीज. तीसरा चीज जो हम लोग को लिखना है वो है आपका ये. सो एंटी आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन है, ये हम लोग को पता होना चाहिए. तो एंटी, कभी भी आर्टिकल 14 हो तो दिमाग में एंटी आर्बिट्रेरीनेस आ जाना चाहिए. केस आ जाना चाहिए दो ठो, ईपी रोयप्पा का केस और मेनका गांधी का केस. तो मेनका गांधी 1978, ईपी रोयप्पा 1974 का केस एकदम सट से दिमाग में आ जाना चाहिए. चौथा नंबर है आपका, जब 15 17 18 का प्रोविजन डायरेक्ट कोट करो कि भैया ये जो एंटी सबऑर्डिनेशन स्पाइन है भैया, ये कि ये हम लोग बस राइट ग्रांट नहीं कर रहे हैं, वी आर
actively trying to dismantle the caste and title hierarchy that was existing in our society. तो 15, 17, 18 को कोट कर दोगे, 5 को कर दोगे, कैसे किए हैं? 15, 17, 18 से तो किए हैं, 16 से डायरेक्ट हम लोग दिए हैं, 16, 4 को कोट कर दोगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन किए हैं, ठीक है। आप इफिशियंसी को भी बैलेंस करना है, सीधे ये पॉइंट लिखोगे कि अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट एंटी मेरिट, आपको बोलना होगा इट इज ए प्री रिक्विजिट फॉर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम सीधा सीधी पॉइंट लिख देना है, ठीक है, पहला सबसे पहला चीज। और आपको क्या, और उसके बाद आपको बताना होगा क्रीमी लेयर का एवोल्यूशन हुआ, जैसे क्रीमी लेयर का बात आ जाए सीधे इंदिरा साहनी का कोट कर दीजिए। इंदिरा साहनी क्या की है, वैलिडेट की है ओबीसी रिजर्वेशन को और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को, तुरंत नागराज, जर्नैल सिंह, ये सबको कोट कर दीजिए। जैसे क्रीमी लेयर का बात आ जाए, इंदिरा साहनी, नागराज, जर्नैल सिंह, खट खट दिमाग में आना चाहिए सब केस, ठीक है। सब कैटेगराइजेशन का बात है, दविंदर सिंह तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसके बाद वर्क प्लेस डिग्निटी का बात है तो सीधे पोस्ट एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तुरंत तुरंत दिमाग में याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपका आइडेंटिटी और डिग्निटी का बात आए तो तुरंत आपका नालसा, सायरा बानो, नवतेज जौहर सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। आपका जैसे ही इनकम एज ए क्राइटेरिया फॉर गिविंग द सब्सटेंशियल रिजर्वेशन, आपका सीधे दिमाग में ये वाला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनहित अभियान का केस याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है, और और जैसे अगर सीधे आर्टिकल 38, तो आर्टिकल 38 में आपको सीधे याद आना चाहिए पीएम जनमन स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, प्यूनिटिव टीथ भी दिए हैं, एसटी-एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, आप उसको बोलिए, या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आप बोलिए, वो हम लोग दिए हैं, ठीक है, 1955 का। और तीसरा है कि चैरिटी से राइट्स बनाए तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वो मैंडेट है जिसमें कि 4% मैंडेटरी है। तो ये बोल सकते हैं आंसर, लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है कि वी मस्ट इवॉल्व फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप टू ए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एज ए प्राइमरी यूनिट ऑफ इक्वालिटी। इतना चीज लिख दीजिएगा आप, कोई भी इक्वालिटी का आंसर बनेगा इससे, ठीक है, कोई भी इक्वालिटी का आंसर बनेगा, ठीक है। केस सबको याद कर लीजिए भैया, ईपी रोयप्पा का जो केस था उसमें क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, सो इक्वालिटी इज a dynamic cell and it is a true antithesis is arbitrariness, where there is arbitrariness there is no inequality, there is no equality, सीधे कोट करना है, ठीक है। मेनका गांधी क्या बोलना है, मेनका गांधी जहां है तो वहां पे आपको एक ट्रायंगल बना देना है, मेनका गांधी में ट्रायंगल बना देना है 14, 19 और 21 का, ठीक है, कि एनी लॉ मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल इफेक्टिवली ब्रिंगिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू इंडिया। तो चलो आर्टिकल जो 14 है या इक्वालिटी का जो ओवरऑल पिक्चर है, तो उसके संबंध में आपके पास कुछ कुछ आर्टिकल्स याद होना चाहिए, ट्रैप्स क्या क्या है, ये समझ लेते हैं सारे आर्टिकल्स को। पहला है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में दो चीज है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को परमिट करता है बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है, ठीक है। एक्सेप्शन में याद रखिएगा बहुत सारा एक्सेप्शन है क्या, 359, 361, 105, फिर आपका 194, 31C, 361A डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ये सब। आर्टिकल 15 में बेसिकली इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। देखिए भाई लोग, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, नहीं रुकेगा, कास्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, यूनिवर्सल इंट्रो यही है कि देयर इज ए हिस्टोरिकल डेफिनेशन दैट अंबेडकर बोले थे कि कास्ट इज ए ग्रेडेड इनइक्वालिटी ऑफ द वर्ना सिस्टम, but when you give a overall complex that the caste system has evolved from a rigid ritual hierarchy to a resilient socio-political identity, ये तो मानना होगा, ठीक है।
While the Constitution envisioned a casteless society through Article 17, contemporary Indian reflects what sociologist Surinder Jodhka calls the resilience of caste, where it continues to regulate the distribution of material opportunities and social capital even in the globalized economy. एक नंबर पॉइंट। दूसरा, GS2 में कुछ आ जाए तो आप क्या बोलिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन treats the caste not as a static tradition but as a quantifiable category for social justice. As emphasized by Supreme Court in the landmark case, that Article 14 has transitioned from formal equality to substantial equality. That states का जो affirmative action है is not a blunt instrument but a precise tool to reach the most backward among the backward. एक नंबर पॉइंट लिख देना है। सोसाइटी में अगर आ जाए क्वेश्चन तो लिखना है कि सोशियोलॉजिकली कास्ट इन इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट ए बुक व्यू ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन but a dynamic field view of power and dominance. While the traditional जो जजमानी system है has disintegrated caste has assumed new associational forms जो एम एन श्रीनिवास बोल रहा है, acting as a vehicle for political mobilization and filter for soft skills in private sector, a phenomenon often described as secularization of caste. ठीक है। तो अप टू डेट में क्या लिखेंगे? तो पिकअप कोट लाइन्स है वो भी देख लीजिए कि जो आप अगर बी आर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं। बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि कास्ट इज नॉट ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ठीक है, अगर लेबर इकोनॉमी से आ जाए। एंटोल फ्रांस से क्या बोल रहे थे? द मेजेस्टिक इक्वालिटी ऑफ द लॉज प्रोहिबिट्स द रिच एंड पुअर अलाइक फ्रॉम स्लीपिंग अंडर द ब्रिजेस। तो फेयरनेस प्रोवर्टी ये बताना होगा। गेल ऑम्बेट क्या बोल रहे? कास्ट इज ए मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट पम्प सरप्लस टू द टॉप ऑफ हिरार्की। इसमें बोल दे रहा है लैंड ओनरशिप, रूरल पावर। गेल ऑम्बेट बोल रहा है गवई क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इक्वालिटी मस्ट बी इवॉल्विंग एंड ऑर्गेनिक। ठीक है। अगर कोई आज हमको पूछ दे कि भैया कास्ट कैसे कैसे रेनफोर्स हो रहा है इंडिया में, तो हम क्या बोलेंगे? पहला चीज़ तो भैया देखिए, कास्ट बेस्ड वोट का मोबिलाइजेशन हो रहा है कि ओम टू टूम कास्ट आइडेंटिटी देखा जाता है, आपका इलेक्टोरेट का उस हिसाब से सीट डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यूपी में देखिएगा यादव और मुस्लिम का कंसोलिडेशन है, दलित बहुजन बीएसपी का है, और पाटीदार मोबिलाइजेशन गुजरात का है। सो दिस इज द थिंग। द सेकेंड थिंग इज दी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप देखिए, आरजेडी को देखिए, डीएमके को देखिए, जेडीयू, एआईडीएमके, एलजेपी, अपना दल, बहुत सारा पार्टी है। ठीक है। इलेक्टोरल रिजर्वेशन है कि एस टी एस सी सीट से रिप्रेजेंटेशन का बात होता है, बट ऑल्सो दे ड्रो स्ट्रेंथ फ्रॉम reinforce द कास्ट आइडेंटिटी एज ए पॉलिटिकल सोर्स, तो करता ही है। चौथा है आपका इकोनॉमिकल एंड ऑक्यूपेशनल कंटिन्यूटी, कि अभी भी ऑक्यूपेशनल परसिस्टेंस है, कि मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी जो मेनियल वर्क है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, इनफॉर्मल लेबर हो गया, ये सब लोअर कास्ट के लोग ही कर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन जो हुआ था, चौथा पॉइंट। पांचवा है कि इंटरप्रेन्योरशिप में भी कास्ट दिखता है, कि अगर आप आपको ट्रेड में देखिएगा तो अग्रवाल वैश्य सब आगे बढ़ेगा, देन आदर्श जो उसको देखिएगा बिजनेस में आगे रहेगा, चेटियार जो है फाइनेंस में आगे रहेगा, जो रेड्डीज है और कामास है वो रियल स्टेट में आगे रहेगा। ऑक्सफेम का रिपोर्ट भी है कि अपर कास्ट दे डोमिनेट इन दी हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स। सो दलित आदिवासी दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्मल सेक्टर, ये है। छठा पॉइंट होगा कि आपका सोशल में आ जाइए, तो हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल से स्टार्ट किए, देन इकोनॉमी पे गए, देन सोशल में आ जाइएगा तो द इंडोगेमी। तो इंडोगेमी इज द ट्रूथ हेयर। सो अगर आप IHDS का सर्वे देखिएगा तो 90% मैरिज अभी इंटरकास्ट हो रहा है, मतलब इंटरकास्ट हो रहा है। ठीक है। आप मेट्रीमोनियल साइट्स में के रिपोर्ट्स में भी देखिएगा तो अगर जो नो कास्ट नो बार जो है उसका मैच लगभग लेस देन 10% है। ठीक है। और पहला तो हो गया शादी में, दूसरा हो गया आपका रिलीजियस और रिचुअल कंटिन्यूटी में। आज भी टेम्पल का जो प्रीस्टहुड है या जो फेस्टिवल्स होगा, प्योरिटी रूल्स होगा, वो कास्ट बेस्ड ही होगा। ठीक है। आर्ट हो गया आपका प्राइवेट स्फेयर में, हाउसिंग वगैरह को लेके लीजिए कि जो हाउसिंग सेग्रीगेशन है, जैसे जैन ओनली सोसाइटी है, पाटीदार कॉलोनी है, ये सब आपका डाइनिंग टेबल्स माना जाता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में आ जाइएगा तो भैया कैंपस में बायसनेस दिखेगा आपको, जैसे आपका यूजीसी का नया गाइडलाइन बना दर्शन सोलंकी का केस में। NLSU है जो है आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सेल बनाना पड़ा। रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट कोट कर दीजिए, आपका NCRB का डेटा कोट कीजिए, कास्ट सेंसस बताइए बिहार में हो रहा है।
अफर्मेटिव एक्शन जो होता है उसके हिसाब से एक स्टेट पॉलिसी बना रहता है कास्ट। डिजिटल मीडिया में है, यूट्यूब चैनल्स है, फिल्म में आ जाइए, ये सब बता दीजिए, नाम मार दीजिए। पर कास्ट बेस्ड इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको तीन चार चीज़ को बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर कास्ट बेस्ड इवोल्यूशन में आप बता दीजिएगा कि ऋग्वेद से स्टार्ट हुआ वर्ण सिस्टम था, पोस्ट वैदिक में आपका उपनिषद और मनुस्मृति जहाँ पे असली सब कास्ट और ये सब का इवोल्यूशन हुआ। मिडिवल पीरियड में आपका भक्ति सूफी वाला इवोल्यूशन बता दीजिएगा कि हाउ दे स्टॉप द कास्ट बेस्ड एंट्री इन द रिलीजन। फिर आप कॉलोनियल पीरियड में आ जाइए जहाँ पे कास्ट सेंसस हुआ, सर्टेन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, बट along with the modern time, with the industrialization, globalization, urbanization, we still see that in contemporary times that Dalit assertion movements, caste-based discrimination cases that are frequently coming into it. So there are certain nuances that we need to understand. We need to understand the proportionality test. So when you are understanding the proportionality test, उसमें तीन चीज है, पुट्टू स्वामी जजमेंट में दिया था. There should be a rational nexus, that आपका जो objective है and your means, it should be rationally aligned. ठीक है. दूसरा, there should be no alternative. There should be no alternative uh, for uh, with means except restriction. This is the second thing. Now the third thing is that we are getting a larger benefit than that of the harm in the proportionality test. So this is the whole three things: the rational nexus, alternative, and the larger benefit we are getting it from. So like if we want surveillance, okay, for example, so we need to set up like whether this national security means is fulfilling our objective or not. Okay, means striking fulfilling the objective of national security or not. So if yes, okay, is there no alternative? Is the national security is much more the benefit that you're getting it from is much greater than the individual privacy, then you can go easily. Then the DNA also the same thing, the DNA test that okay. So the issue with the DNA test is that the privacy of the women and womb is violated. Okay. So now the legal status of a womb is depends on the abortion law. Okay. So we need to check that objective is rational or not. Okay. So if we want that we want a paternity test, that in order for inheritance, in order for divorce, in order for matrimonial, it is fine. So second is that alternative are not objective. Okay. Then the third one is the larger benefit is there. Okay. So the same thing goes for the narco analysis, the brain mapping, lie detection tools, other things here and there. And when we are comparing the affirmative actions policy in the other countries, so if you see in India, we have the Constitution of India, we have 14 to 18, we have doctrine of reasonable classification, and we are on the caste religion race sex place of birth के हिसाब से हम लोग we are not discriminating. In the US uh, we have also the 14th amendment that we are not doing any kind of discrimination. So here model is substantive, there is an anti classification. उतना भी कोई हार्ड चीज नहीं है, तो सिंपल से समझिए कि जो इंडियन में रिजर्वेशन सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो जो इंडियन फॉर्मेट है आपका रिजर्व अफर्मेटिव एक्शन का, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक हिस्टोरिकल रियलिटी कि वी आर डूइंग सर्टेन atrocities against the STS SCs and the modern context of OBCs and the EWS. So जो द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है is the instrument of social change that we need to give here. So there are structural things that we are targeting, as well as there are some practical schemes um through which we are providing. So when we talk about the comparison in India, US, or France, you need to see these things. That in India we have Constitution of India, Article 14 to 18, or Doctrine of Reasonable Classification. In the US also we have the 14th Amendment, their constitution. Since UK there is no written constitution, they have the equality laws.
The France also have the Declaration of the Rights Men. So what is the model? So we have the substantive model, we have anti-arbitrariness model, they have anti-classification model of US. It means um, it prevent the future discrimination, like on the focus on the class, not on the purpose. Okay, like the intelligible differentia is much more important than the reasonable access there. So like you cannot do anything, any kind of discriminatory thing on the basis of the race, color, nationality, origin, religion. This is the strict in the US. Then at the intermediary layer, if you see in the gender basis, you can do something. And on the rational thing is like you can on the basis of disability, on the basis of age, on the wealth, you can do. UK, we as a comprehensive model you are following. Then equality before law is the area of France. So Constitution of India is authorizing the affirmative action. There in US there is limited affirmative action. US is have the positive actions but they do not have quota. Similarly, France also not have the quota system. Okay, so in India it is historical and social reality is unique, and in US equality through case laws. Okay, so when we understand the US sense of equality, it means there should be anti-classification. Means we don't want to classify them. Okay. So they are following the tire-based approach. Okay. Look, when you see judgment like Brown versus Board of Education, they have ended the racial segregation. When you read the Legrand versus Backel case, the quotas they are unconstitutional. Race can be factor. Okay, but you see the latest judgment of SFA versus Harvard, this track down the race-based admission. Okay, so the same thing, the US versus Virginia, that women admission in military, so they allow that thing. France, there is a formal equality. Okay, so they have the concept of laicite. So formal traditional approach है फ्रांस का. Burqa ban means you cannot uh, do any kind of anti arbitrary means like arbitrary thing in public. This is the France ka cheez. And in UK, there's an Equality Act of 2010. Okay, so Carson was a Secretary of Work. Different treatments would be rational. Gender pay gap reporting, there it is. So we need to understand through this lens also once. But I don't think इस सब इतना काम आएगा.